Good afternoon, Namaskar. I believe the best achievement in your life always happens when you step out of your comfort zone. For me and my team, it was achieving a Guinness World Record in the field of infrastructure development. In year 2020 and 2021, COVID had been the worst. It had taken a serious toll on everyone's morale. We all were very demoralized, like most of the people on this planet. And so, we decided to inspire our moral. We had gone to take on this. And for this, mind control is the biggest asset. See, mind is your greatest friend and worst ever enemy. And good thing for us is that we can choose which it will be. To kill the negative mentality within, we decided to go with a positive mindset. And that's why we decided to break a world record and make a new for us in the field of construction of roads. The earlier world record was laying a bituminous concrete continuously for 25.54 kilometers, that too in a single day. So we planned 30 kilometers. On 30th May 2021, early morning, our journey continued to make our first world record in hard COVID hit area of Satara district in Maharashtra. Same day, by 9 p.m. in the night, our team could equal the earlier world record of 26 kilometers. Our team was so motivated that they decided to continue for 24 hours. At the end, in the morning, we measured the length and it was 39.69 kilometers. Which means we broke the earlier world record by 1.6 times. We were very happy. लेकिन ये दिल है कि मांगता more. So we decided to go for a bigger one. And this time, a Guinness World Record. The first time in the history of Indian infrastructure. The earlier Guinness World Record was executed in Qatar near Doha by a Qatarian government company in the year 2019, February 27, and it was continuously laying of a bituminous concrete for 25.27 kilometers in 242 hours. We again thought and decided to step out of our comfort zone and to break this world record, this Guinness World Record. We knew it was tough. We have to set a target, work, plan efficiently. So decided to have a target of
38 kilometer 2-lane national highway. It means 75 plus kilometer of a bituminous concrete single lane national highway. Why 75 kilometers? The year 2022 was Azadi Ka Amrut Mahotsav, the 75th anniversary of Indian independence. इस विशाल लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमने 4 महीनों तक माइक्रो और मैक्रो प्लानिंग करी। उसके लिए महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में अमरावती और अकोला जैसे बड़े शहरों को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे हमने चुना, जो नेशनल हाईवे ईस्ट एंड वेस्ट, पूरब और पश्चिम भारत को जोड़ता है। और इसी नेशनल हाईवे के इन 2 शहरों के बीच हमने एक वॉर रूम बिठा दी और उस वॉर रूम को नाम दिया जावली। क्यों जावली? छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी जो युद्ध नीति थी, गोरिला वॉरफेयर स्ट्रैटेजीज, उसको लेके उनके शत्रुओं को इसी जावली में बुला के खत्म किया था। और इसी गोरिला वॉरफेयर स्ट्रैटेजीज को लेके उन्होंने 400 साल पहले हिंदवी स्वराज का निर्माण किया था। क्या था उनके पास? शस्त्र थे, हाथी, घोड़े, तलवार, तौफ, भाला, और काम करने के लिए साथी थे, जान लगाने वाले मावला। बस यही छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानियां मैंने इकट्ठा कर ली और मेरे 728 लोगों को, मेरी टीम को मैं ये हिस्सों में बताते गया। मैंने उनको कहा, हमें भी एक रणभूमि पे लड़ना है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है अपने देश के लिए। क्या है ये रणभूमि? ये 75 किलोमीटर की रणभूमि। अपने पास शस्त्र क्या है? अपने पास शस्त्र है हॉट मिक्स प्लांट, सेंसर पेवर, टैंडम रोलर, पीटीआर, हाइवा टिपर्स, और मेरे साथ आप सब छत्रपति शिवाजी के मावला हो। मुझे याद है वो महीना जून का था और 3 जून को हम सुबह पूजा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड का काम शुरू करने वाले थे। एक दिन पहले शाम को मैंने आखिरी बार 728 लोगों की टीम को एक साथ बिठाया और उनको वो स्टोरीज कहते कहते मैंने उनको ये टारगेट बता दिया। ये बताते बताते इन्हीं साथियों की तरफ से मुझे अपने देश की गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। छत्रपति शिवाजी का जय जयकार सुनाई देने लगा। उसी वक्त मैंने समझ लिया कि ये मेरा अवतार खत्म हो गया, क्योंकि ये काम मेरे 728 साथियों ने अपने कंधे पे लिया था। आधी लड़ाई तो यही जीत गए हम। बस दूसरे दिन सुबह 7:27 को जब हमने काम शुरू किया पूजा विधिवत करके, तो कई लोगों ने सवाल उठाए। जून में मानसून आता है, बारिश होती है, डांबर का काम करने जा रहे हो, डांबर और पानी का 36 का आंकड़ा है, एक दूसरे को वो पसंद नहीं करते। मैंने उनको समझाने की कोशिश की। हमने फोरकास्ट साइट जो है उनको देखा है, उनको फॉलो किया है। फोरकास्ट साइट के तहत 70% बारिश आने की संभावना नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया 30% का क्या? मैंने बोला उसके लिए 2 किलोमीटर का पॉलीथीन पेपर लाके रखा है।
डांबर में मिक्स करने के लिए ऐसे एडमिक्सचर्स लाए हैं जो पानी का असर कम करेगी। फिर भी सवाल आते ही गए। मैंने उनको यह कहा, अब इसके साथ पर्जन्य देवता जो है उसका मालिक होता है राजा इंद्र भगवान। मैंने इंद्र भगवान को भी प्रार्थना करी है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। मैंने उनको कहा है, इंद्र भगवान आपकी राजधानी तो अमरावती है, मैं मेरा काम अमरावती से शुरू करने जा रहा हूं, आपके राजधानी से ही यह काम शुरू हो रहा है। मेरी विनती है कि इन 5 दिनों के अंदर आप कृपा करके इस 75 किलोमीटर के ऊपर बारिश ना आने दें। और मजे की बात मैं आपको कहना चाहूंगा, भगवान ने सुन ली। अमरावती और अकोला बीच के 75 किलोमीटर, अमरावती में उस 5 दिनों में 3 बार बारिश हो गई, अकोला में 2 बार बारिश हो गई। 75 किलोमीटर के ऊपर बारिश की बूंद नहीं। When there is a will, there is a way. आप हिम्मत रखते हो ना, तो आपकी कीमत होती है। और 8 तारीख को, 7 जून को यह वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारा हुआ। 8 तारीख को उसी 75 किलोमीटर पे धुआंधार तूफानी बारिश हो गई। रोज का हमारा काम 3 तारीख से जैसे ही किलोमीटर बाय किलोमीटर शुरू हो रहा था, चुनौतियां तो आती होती थी, लेकिन हमारा खुद का और हमारे टीम का मनोबल जो है वो एकदम खंबीर था, कभी ढला नहीं। दूसरा दिन, तीसरे दिन एक गड़बड़ी हो गई। इसी रोड के ऊपर जो बिटुमिनस कंक्रीट आता था, उसमें से एक हॉट मिक्स प्लांट जो सबसे नजदीकी था, ब्रेकडाउन हो गया। तो उसमें हमारी जो सीनियर टीम है, उन्होंने जुगाड़ टेक्नोलॉजी, बिकॉज सी आई बिलीव इन जुगाड़ टेक्नोलॉजी। देयर आर 6 प्रिंसिपल्स। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ जुगाड़ टेक्नोलॉजी, सीक अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी। ये सीनियर टीम ने कुछ हल निकाल के वो बंद पड़ा हुआ हमारा हॉट मिक्स प्लांट चालू कर दिया। काम आगे बढ़ता रहा, क्योंकि जैसे ही ये हॉट मिक्स प्लांट बंद हुआ, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम और उनकी कंडीशन ऐसी थी, यू हैव टू ले अ कंटिन्यूअसली लेइंग ऑफ अ बिटुमिनस कंक्रीट विदाउट अ ब्रेक ऑफ सिंगल मोमेंट, सिंगल सेकंड। और अगर ये होता, दे सेड वी विल सिंपली डी-रिकॉग्नाइज योर अटेम्प्ट। तो चालू तो रखना ही था। चौथा दिन आ गया और 5वें दिन सुबह आखिरी काउंटडाउन शुरू हो गया और बस धोखा हो गया। सेंसर पेवर जो बिटुमिनस कंक्रीट ले करता है रास्ते के ऊपर, उस सेंसर पेवर का ऑगर जो राउंड द क्लॉक गोल घूमता रहता है, उसमें छेद आ गया, क्रैक पैदा हुआ। क्या करें, सब डर गए, क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हम करने जा रहे हैं देश के लिए, ये डी-रिकॉग्नाइज हो सकता है अटेम्प्ट। बस हमारी एक मेंटेनेंस की टीम सामने आ गई। उन्होंने मोबाइल वेल्डिंग मशीन साथ लाया और ये चलते हुए पेवर के अंदर उस ऑगर को जहां छेद गया था, वहां उन्होंने उस छेद जैसे ही नीचे से ऊपर आ गया, एक टाका लगा दिया। सेंसर पेवर चलता रहा। आगे जाके वापिस वो ऑगर नीचे गया, नीचे से वापिस वो छेद ऊपर आ गया, दूसरा टाका, वापिस नीचे, ऊपर तीसरा टाका,
चौथा टाका, पांचवा टाका करते करते उन्होंने वेल्डिंग पूरा कर दिया। इस सेंसर पेवर को रुकने नहीं दिया। उसी शाम 5 बजे हमने जब ये लंबाई माप ली तो 75 किलोमीटर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का इतिहास हमारे टीम ने रचा दिया था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम वो लंदन से आई थी। उन्होंने वो पूरा रास्ता माप लिया, क्वालिटी देख ली, क्योंकि ये काम करने के लिए वो इतने सतर्क थे। 8 हाईवे एक्सपर्ट्स उन्होंने लगाए थे 3 शिफ्ट के अंदर। 24/7 कैमरास थे वहां। कहीं आपका ये सेंसर पेवर रुक ना जाए, कहीं हम आपका ये अटेम्प्ट डी रिकॉग्नाइज कर ना पाए। ये सब देखने के बाद उन्होंने रात को 9 बजे डिक्लेयर किया, यू आर ऑफिशियली अमेजिंग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। ऑफिशियली अमेजिंग, ये 2 शब्द सुनने के लिए मेरी जो 728 लोगों की टीम थी, दिन रात वो काम कर रही थी। कुछ तो लोग पूरे 4-5 दिन सोए तक नहीं। मेरी तो उम्र 58 साल है, मुझे नींद आती थी, मैं कभी कभी जाता था। लेकिन ये बाकी टीम पूरी लगी रही काम के ऊपर। और जैसे ही काम खत्म हुआ, मशीन का आवाज, खड़खड़ाहट बंद हो गई और ये रिकॉर्ड डिक्लेयर हुआ। फटाकों के साथ मेरे साथियों ने घोषणा देना शुरू किया। देश के गौरव की घोषणा थी, छत्रपति शिवाजी महाराज के जय जयकार की घोषणा थी। ये सब करते वक्त मुझे यही कहना है कि सी, आई बिलीव इन दिस, इट इज अ सिंपल थियरी ऑफ 3 P's. If you want to succeed in your life, you have to follow these 3 P's. It's a very simple formula. The first P, passion. रुचि होनी चाहिए। हम जिस काम के अंदर रुचि रखते हैं वही दिल से कर सकते हैं। सेकंड P, पेशेंस, श्रद्धा और सबूरी हमें सिखाई गई है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड P is perseverance. I guarantee you, if you follow these 3 P's very seriously, you are going to succeed in your life. Take it from me. Thank you.